Very good morning, student. In last video, we are able to understand about how to change active to passive, and also we are able to understand about simple present tense. That how we are going to change simple present tense active voice to passive voice. Simple present tense में जो आपका active voice होता है उसको passive voice में कैसे change करते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने last video में जाना था. Today we will try to understand about simple past tense. How we are going to change simple past tense into passive voice. So under simple past tense, your passive voice is subject plus second form of verb plus object. This one is your active voice form. एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर क्या मिलता है? सब्जेक्ट होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है. इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? व्हाट्स योर बेसिक कंसेप्ट डिक्टेट? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. अंडर सिंपल पास्ट टेंस योर एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब plus by and subject takes the place of object. Okay, now for an example we will try to understand this concept on the basis of an example. India won the match. दिस इज योर सब्जेक्ट. ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है. ये आपका विन का सेकेंड फॉर्म वोन हो गया और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, सो इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे? सब्जेक्ट द मैच एंड द मैच. दिस मैच is in a singular form, means third person singular number. So what we need to use? Was. The match was won by India. Okay, this is your affirmative, positive, और यू कैन ऑल्सो से असर्टिव सेंटेंस. अफर्मेटिव में असर्टिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? इंडिया वॉन द मैच. इसमें द मैच आपका ऑब्जेक्ट हुआ, सेकंड फॉर्म वर्ब का वॉन हुआ. अब यहां से ऑब्जेक्ट क्या ले लिया? इस सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है. ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज योर वाज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आफ्टर यू नीड टू यूज बाय एंड दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट which is the subject of your active voice. ये आपका क्या है? active voice में subject है. Now in negative, India did not win the match. ओके, डिड नॉट का यूज होता है जब भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो ये डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाता है और डिड नॉट के बाद आपका वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है. अब इसका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करो. जस्ट ट्राई टू डू इट फ्रॉम योरसेल्फ. अपने से खुद से करने की कोशिश डेवलप करो. साथ के साथ वीडियो देखते हुए खुद भी करो. ओके, जस्ट ट्राई टू डू इट फ्रॉम योरसेल्फ. The match was not won by India. Okay, so correct passive voice is your the match was not won by India. Okay, now the next one is your interrogative.
In interrogative, what you need to use? Did comes at the first place, means your auxiliary verb comes at the first place. Did India win the match? Okay. So what should be your passive voice? Again, was is your appropriate auxiliary verb. This one, was comes at the first place. Was आपका क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा. Then after, this object will take place. Was the match won by India? Okay. Now, interrogative, negative. In interrogative negative, what you need to use? Didn't India win the match? Okay. So what should be your passive voice? Have to dictate the thing at the right time in your copy. Was not the match won by India? And the last one, which belongs from your WH family. So what should be? When did India win the match? So what I dictated under simple present tense में ही मैंने क्या बतला दिया था? When आपका as usual अपनी जगह पे आ जाएगा, हम क्या करेंगे? When as usual लिख देंगे. इंट्रोगेटिव अब आपका सिंपल, आप ये गौर करोगे इस फॉर्म को, इंट्रोगेटिव को अब ये टैली कर रहा है, तो अब आपका स्ट्रक्चर एज यूजुअल ये आपका आ जाएगा. When was the match won by India? So these all are the structures under simple past tense. ये सर आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस में आता है. In this, again I am going to repeat. Your structure is subject plus V2 plus object. Objects take the place of subject. Appropriate auxiliary verb under simple past tense is your was oblique word. Then you need to use third form of verb. Then by. Then object. Object where subject takes the place of object. Okay. Now we are able to understand about simple present tense and simple past tense. Now I got several kinds of requests from you all that what will I do when we have two objects in a sentence. आप लोगों की तरफ से मुझे एक रिक्वेस्ट मिल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा था सर क्या करेंगे जब हमको दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. Sums. We will try to understand object. When you are going to change active to passive voice, it may be possible that you will find two objects in a sentence. आप लोगों को दो ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में मिलेंगे. For an example, he lent me some money. ओके. अब यहां पर हमको दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है. एक तो ऑब्जेक्ट हमको दिखने को ये मिल रहा है और दूसरा मेरे पास क्या है? मनी. अब ये कौन सा चक्कर है ये आप समझने का प्रयास करें. जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है
maximum cases. In maximum case, this one is your indirect object. Okay? And this one is your direct object. You can simply understand, जो आप आसानी से समझ सकते हो, वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लिविंग होते हैं. मीन्स यू कैन से नाउन और pronoun. And second identification of indirect object near to main verb. ठीक है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला तरीका है जो वो क्या होगा, नाउन या pronoun होगा. दूसरा क्या होता है, वो हमेशा वर्ब के नजदीक में रहता है. ये आपका वर्ब है, ये क्या है, वर्ब के नजदीक में है. ठीक है. और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. ओके. ये आपके क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे. इस चीज को समझ गए? मीन्स जो कुछ भी वर्ब के नजदीक में रहेगा वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. 99% केसेज, 99% केसेज में क्या होगा, जो भी वर्ब के नजदीक में रहेगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और जो भी वर्ब से दूर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर है? क्लियर हो गया? अब इस सब टाइप के सेंटेंसेज को आप एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले ये पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है. आपको पता चला होगा ये सब्जेक्ट है आपका, लैंड का सेकेंड फॉर्म है ये. और आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, मीन्स एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हुआ एंड सेकेंड वन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन दिस सर्कमस्टांसेस यू कैन कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव फ्रॉम बोथ ऑब्जेक्ट. आप दोनों ही ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? आपका जो बेसिक कंसेप्ट है बस उसी कंसेप्ट को रखे रहना है. मी किस में अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा. मी किस में चेंज हो जाएगा, मी इज योर पर्सनल प्रोनाउन. मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में. टेंस आपका कौन सा है, सिंपल पास्ट. मीन्स यहां आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब वाज, आई वाज. थर्ड फॉर्म ऑफ लैंड, दिस वन इज योर लैंड. आई वाज लैंड. अब आप क्या करेंगे, सम मनी को यहां पे लिखेंगे. आई वाज लैंड सम मनी बाय हिम. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या क्या हम लोगों ने सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया, फिर से आपका थर्ड फॉर्म यूज कर दिया गया. ये आपका एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, दिस वन इज योर एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, दिस वन इज योर थर्ड फॉर्म. देन आफ्टर व्हाट यू नीड टू डू, योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस. then by, then after your object which is the subject in active voice. एक तो ये तरीका हुआ जो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए. दूसरा तरीका क्या होगा, अगर जो बच्चे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को कैरी कर लेते हैं, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, सम मनी और सम मनी आपका क्या हुआ, अगेन दिस वन इज ए सिंगुलर नंबर, वाज lent two is here in a silent mode. Again your after two you need to use your other object, to me, by,
him. So there are two kinds of passive voice when you have two object in your active voice. जब आपके active voice में दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, आप दोनों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं. Only what you need to use, just you need to identify the nature of your active voice, means that one is in which tense, वो आपका किस टेंस में उस चीज को आइडेंटिफाई करना है. Then accordingly you need to use your appropriate auxiliary verb. उसके हिसाब से आपका appropriate auxiliary verb होगा. Rest आपका फिर से क्या आ जाएगा, verb का थर्ड फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एक ऑब्जेक्ट तो आपने ले लिया है, तो आपके पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है वो आप बाय से पहले यूज करने की कोशिश करेंगे. हमेशा क्या होगा, वो बाय से पहले आएगा. देन आफ्टर योर ऑब्जेक्ट विल टेक प्लेस. Okay, if you have any doubt, then you can comment and try to like and share this particular channel. Okay, and if you have any doubt, a single doubt, have to share with me. Okay, thank you.